এটা নেটওয়ার্ক সেকশন আছে, ঠিক আছে। এই যে নেটওয়ার্ক সেকশনে যত এইরকম আছে এগুলো সব সব কয়েলই হয়, এগুলো কয়েলেরই চিহ্ন হয়। যত এরকম কালো কালো ইয়ে আছে মানে এগুলো সব ছোটো ছোটো কয়েল আছে সব নেটওয়ার্ক সেকশনে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইগুলো সব নেটওয়ার্ক সেকশনে ব্যান্ড ফিল্টার আছে, সব আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি এরা ক্যাচ করে। এক একটা ব্যান্ডের এক এক রকম ফ্রিকোয়েন্সি আছে। আর এক্সটিএক্স ফিল্টার আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর এক্সটিএক্স ফিল্টার আছে। উপরে চলে যাও, আর ওয়াইফাই সেকশন আছে, নিচে আসো, ইয়ে কয়েল আছে ওখানে, হ্যাঁ কয়েল আছে। কয়েল আছে। নেটওয়ার্ক সেকশনে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটার আর কয়েল আর রেজিস্টার এগুলো মেলে। মানে গ্রাউন্ড থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ওখানে আসো, প্যাক ক্যাপে নিয়ে আসো, প্যাক ক্যাপে। এটা হচ্ছে पैकेज कैपेसिटर। ये वाला जो है ये पैकेज कैपेसिटर। কখনো জাম্পার হবে না, ঠিক আছে। नहीं नहीं, ये जंपर नहीं होता है, इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। আর যেখানে কয়েল আছে ওরা জাম্পার হয় না, ঠিক আছে। এটাও জাম্পার হয় না, তো জাম্পার जंपर करने से ये इसका फ्रीक्वेंसी जनरेट कर नहीं कर पाएगा। जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है कॉइल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। জাম্পার করবে তো क्या होगा खत्म। फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो पाएगा तो नेटवर्क का दिक्कत आ ফ্রিকোয়েন্সি जाएगा। করার জন্য এখানে কি আছে বার করো, ফ্রিকোয়েন্সির জন্য। এই কোকটা ঘুরিয়ে ধরবো তখন নেবে কিছু ভ্যালু হবে। अगर वैल्यू नहीं है तो समझ लो এটা তো নরমাল ডায়োড। হ্যাঁ না এটা হচ্ছে এদিক দিয়ে এদিক যাচ্ছে, দিস সাইড আর समझो थाईजान में डायोड ठीक है। রেজিস্টার দেখিয়েছো, রেজিস্টারটা रजिस्टर देखिए। আরেকবার দেখো রেজিস্টারটাকে। ओम्स मोड রেজিস্টার চেক করতে হলে আমরা রেজিস্টারের দুই প্রান্তে ধরে ওর ভ্যালুটা চেক করতে পারি যে কত ভ্যালু আছে। কত ভ্যালু আছে, ঠিক আছে। এই রেজিস্টারের ভ্যালু। এবার ক্যাপটাকে দেখাও, ক্যাপটা শর্ট আছে, ভালো আছে। একটা ইয়ে মুড চেঞ্জ বাজার মুড করো ওটাকে। বাজার মুড করো। এই যে ক্যাপাসিটি ভালো আছে কিনা, একদিকে গ্রাউন্ড বাজবে আর একদিকে তোমার ইয়ে ভ্যালু reading আসবে। মানে চলো এবার ডায়োড মোডে নিয়ে আসো, ওর ভ্যালুটা বার করো, ডায়োড মোডে নিয়ে আসো, মিটারটাকে ডায়োড মোডে নাও। হ্যাঁ, রেজিস্টার ভ্যালুটা, এই ক্যাপাসিটির ভ্যালুটা দেখাও। চলো ওকে আছে, ঠিক আছে। ব্যাস এবার রেজিস্টারে আসো। আচ্ছা রেজিস্টার মুডে করো। দুই সাইডে ধরে ওর হচ্ছে মেন যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা বার করতে পারবো, ঠিক আছে। আর এছাড়া যদি আমরা অন্যভাবে চেক করি সেটাকে দেখাও। অন্যভাবে চেক করতে হলে ওটাকে আমরা ইয়ে ডায়োড মুডেই রাখবো। হ্যাঁ, ডায়োড মোডে নিয়ে আসো। তাহলে আমরা একটা রেড প্রোবটাকে গ্রাউন্ড করে নেবো রেড পুরো গ্রাউন্ড হয়ে গেছে, আর এটা দিয়ে চেক করবো চেক ব্ল্যাক করবে। দিয়ে এটার কিছু ভ্যালু আসবে, হুম, দু প্রান্তেই দেখে নেবো কত ভ্যালু আসছে। ভ্যালু আসছে, এইভাবে চেক করবো। ক্লিয়ার হয়ে গেছে। রেজিস্টার, ডায়োড, ক্যাপাসিটার সব দেখে নিলাম। এবার একটা কয়েলে যাও, কয়েলটাকে দেখাও। কয়েলটা ঠিক আছে কিনা চেক করতে হলে আমরা কয়েলের দু প্রান্তে রেজিস্টারের মতোই ধরে দেখে নেবো যে বিপ বাজছে কিনা। হ্যাঁ তাহলে আমার এই কয়েলটা ঠিক আছে, মানে ঠিক আছে। কয়েলটার মধ্যে কানেক্টিভিটি আছে। হুম, চলো এবার কয়েলটাকে চেক করো আলাদাভাবে, যে লাইন ঠিক আছে কিনা। কয়েল লাইন ঠিক করতে হলে ওটাকে ডায়োড মোডে রাখবো। সেই ব্ল্যাক ব্লক আমরা গ্রাউন্ড করবো, গ্রাউন্ড করে কয়েলের দু প্রান্তেই চেক করতে পারি, এক প্রান্তে চেক করলেও হবে। रीडिंग लेंगे हम्म। जी यार আর যদি বাজার মোডে চেক করি তাহলে বিপ বাজবে কি সেটা দেখে নাও একবারে। বাজার মোডে নিয়ে যাও, হ্যাঁ বাজার লাইনটা বিপ বাজে কিনা দেখো। ওকে, মানে লাইন ওকে, ঠিক আছে, লাইনের মধ্যে শর্টিং নেই। শর্টিং নেই। বাট এটাই যদি আমার সরি শর্টিং হতো তাহলে কি শর্ট শো করে দিত। ক্লিয়ার, ओके। जैसा मोबाइल रिपेयरिंग में जो टूल्स हम लोग का यूज होता है वो क्या होता है,
आपका किसी के पास प्रिज्मा फिश है, स्टैक है, इसके पास बॉर्नियो है, नसुंतर है, बहुत सारे स्कीमेटिक कंपनी है। तो उन लोगों का सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में सबका डिफरेंस रहता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन और बीट मैप में डिफरेंस रहता है, बट बाकी स्कीमेटिक सबके लिए एक ही होता है। 80% आप देखोगे तो स्कीमेटिक आपको एक ही है। तो आपको जितने भी करना है पढ़ना है वो भी स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर, क्योंकि अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा तब आपको दिक्कत हो जाएगा। और उधर जितने भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है ये परफेक्ट है ये भी हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं जो परफेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सारे रॉन्ग गाइडेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही से आपका कंपोनेंट नॉलेज लेना है, इनका जो कोड है स्कीमेटिक में देखने का वो भी आपको यूज करना है। ठीक है, वो भी आपको यूज करना है। ठीक है, पहले हम लोग स्कीमेटिक ओपन किया, देखा ना जाएगा था, स्कीमेटिक ओपन किया, स्कीमेटिक ओपन करने के बाद फिर आ गया ये मेरा एक 5A का बोर्ड है। ठीक है, इस साइड क्या है, मेरा लेआउट है, और इस साइड इनका पूरा कंपोनेंट है, स्कीमेटिक का फुल डिटेल्स है। ये फुल डिटेल्स में क्या क्या है देखो, फ्यूल गेज आईसी इसमें अलग रहता है, तो फ्यूल गेज आईसी का भी पूरा सिस्टम है, ओवीबी का सिस्टम है, चार्जिंग कैसे हो रहा है ये भी सिस्टम है, बैटरी कनेक्टर पे जो हम लोग एरर आता है वो भी फुल डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आईसी का टोटल सिस्टम है, टोटल फुल सिस्टम है, बक कन्वर्टर का यूज कैसे होता है, ठीक है, एलडीओ सर्किट कैसे होता है, फुल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों का जो पढ़ना है इस सर्किट के ऊपर पढ़ना है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझे क्या नॉलेज होना चाहिए, उनका डायग्राम। और अगर मेरे पास कोई भी बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, ये बोर्ड में ये पहचानना भी जरूरी है ये कौन सा क्या आईसी है, इसमें कौन कौन आईसी कौन कौन सेक्शन में यूज हुआ है ये भी देखने को बहुत जरूरत है। उनके बाद ये जितने भी सिस्टम में है आप देख पाओगे, ये जो कलर का है ये क्या है, ये क्या है, ये सब जितने भी है ये देखना पड़ेगा क्या क्या है, कैपेसिटर की यूज है, ये जो जितने भी कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा रजिस्टर है, कौन सा कॉइल है। ठीक है, कॉइल का स्विचिंग का सिस्टम आपका जानना पड़ेगा, बक स्विचिंग कहाँ पे होता है, बूस्ट स्विचिंग कहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी नॉलेज आपको परफेक्ट होना ही है। उनके बाद आ गया आपका रजिस्टर, रजिस्टर का काम क्या होता है, आपका ओम्स को खींचना, मतलब आपका जो वोल्टेज है उनको कम करके आगे भेजना है। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का यूज होता है, पहले भी बोला हूँ, बट सबका एक एक वैल्यू है। ये मेरे पास स्कीमेटिक रहेगा तो इनका, ये मान लो ये मेरा कैपेसिटर खराब है, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं हो आप और दूसरा बोर्ड भी नहीं है तो आप कैसे ढूंढोगे ये इसका वैल्यू। तो इसके लिए क्या यूज होता है, स्कीमेटिक यूज होता है, ये कैप का वैल्यू क्या था। ठीक है, मोबाइल फील्ड में जितने भी है कैपेसिटर साइज और उनका वैल्यू हिसाब से अलग अलग जगह उनका वर्किंग होता है। ठीक है, एक तो साइज, दूसरा उनका वैल्यू। रजिस्टर का भी सेम है, अगर मान लो किसी सेक्शन में रजिस्टर को आपको वेव मिल रहा है तो ये मत सोचो वो शॉर्टिंग है, क्योंकि वो लो ओम्स का है इसीलिए उनका बीप आ रहा है। ठीक है, किसी सेक्शन में आपको कॉइल पे बीप आ रहा है, ये भी मत सोचो वो शॉर्ट है, क्योंकि वो ग्राउंड का ऑपरेट होता है, इसीलिए ग्राउंड के साथ उसका स्विचिंग का ऑपरेट होता है, तो इसीलिए वो आपको शॉर्टिंग शो कर रहा है। ठीक है, बट और एक चीज ये आपका दिमाग में और पूरी घुसल, क्या शॉर्टिंग सेक्शन में कभी आपका वोल्टेज नहीं बनेगा।
आपको मल्टीमीटर यूज करने का टाइम पे लग रहा है ये शॉर्टिंग है, ठीक है, तब उनको वोल्टेज में कन्वर्ट करके चेक करो उनका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो शॉर्टिंग सेक्शन है तो वोल्टेज कभी नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, तो आज जो क्लास होगा आपका कॉम्प्रोमेंट का ऊपर क्लास होगा, क्योंकि विदाउट कॉम्प्रोमेंट नॉलेज मोबाइल फील्ड में वर्किंग पॉसिबल नहीं है। मोबाइल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिशियन का कोई भी लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट है, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप वो कभी भी नहीं कर पाओगे, आपका पॉसिबल ही नहीं है ये करने में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं किसमें कौन सा कॉम्प्रोमेंट है। ओके, स्कीमेटिक में इनका कोड क्या है, इनका सिंबल क्या है, उनके बाद आएंगे इनका शॉर्ट, वर्किंग, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, ओके कंडीशन। उनके बाद आपका जानना है ये रिवर्स में कैसे वर्क करता है, फॉरवर्ड में कैसे वर्किंग होता है। क्लियर? कभी भी आप नेटवर्क सेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका शॉर्टिंग मिरर शॉर्टिंग नहीं है भाई, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम होता है, इसीलिए जितने भी कंपोनेंट है वो ग्राउंड के साथ ऑपरेट होता है। इस फील्ड में काम करने से पहले सबसे पहले जो चीज जरूरत है वो आपको सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में मेरा क्या क्या है, लाइट सेक्शन में मेरा क्या क्या है, ग्राफिक सेक्शन में कौन सा आईसी यूज हुआ, ऑडियो सेक्शन में कौन सा कॉइल है, वो कॉइल का कोड क्या है, आपको स्कीमेटिक देख के ही पता चलेगा। नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या है, कौन सा बैंड फिल्टर कर रहे हैं, कौन सा RxTX को फिट कर रहे हैं, कौन सा बैंड का आईसी है, कौन सा 2G आईसी है, कौन सा 3G आईसी है। ठीक है, ये सब आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। कौन सा मोबाइल पे आपका चार्जिंग सेक्शन अलग है और लाइट ग्राफिक्स अलग है। किसी सेक्शन में आईसी का अगर बेस रहेगा तो पता चल जाएगा ये आईसी का चार्जिंग, लाइट और ग्राफिक एक ही साथ है, इनके लिए अलग से लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी नहीं है। ये भी आपको आईसी का डेटाबेस जानना होगा, उनके बाद आपको काम करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई, ब्लूटूथ वो तो बात की बात हो गया। उनके बाद आईसी किस तरह ऑन होता है, कौन सा वोल्टेज उनका चाहिए होता है, वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, उनके बाद जो सीपीयू का जो सिग्नल होता है वो भी चाहिए, सीपीयू का डेटा लाइन, एन सिग्नल, क्लॉक, ठीक है, ये चाहिए, मेगावाट फ्रीक्वेंसी, स्लिप लाइन, ये सब चाहिए होता है इस लाइन पे। बहुत सारे वीडियो में बोल देते हैं भाई आपका बाक ऑन नहीं हो रहा है, ये दो कैप को कर दो ऑन कर। अरे माता चल, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बाक क्या है पहले जानना जरूरी है, बाक क्या है और उसका वोल्टेज सीपीयू में क्यों चाहिए होता है। बाक क्या है, उनका वोल्टेज सीपीयू में क्यों चाहिए होता है। आपका बूस्ट और बाक का अंतर पता नहीं है, आप लेक्चर दे रहे हो, ये सब नहीं चलता है। वो बूट सीक्वेंस में आता है आपका, पहले आपका हाई एलडी ऑन होगा, उनके बाद लो एलडी ऑन होगा, उनके बाद आपका बाक सीपीयू लाइन में बाक ऑन होता जाएगा। ठीक है, बाक होने के बाद, ऑन होने के बाद आपका क्या क्लॉक स्पीड, जो स्लिप सेल की जो आरटीसी का लाइन है वो भी ऑन होगा। उनके बाद आपका मेगावाट का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। क्लियर? उनके बाद क्या होगा, ऑन रीसेट, जो रीसेट लाइन होता है, उनके बाद उनका बनेगा टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में आप चेक करो उधर सही वोल्टेज है कि नहीं। अगर टेस्ट पॉइंट में आपका सही वोल्टेज नहीं है, आप सॉफ्टवेयर भी कर लो, सॉफ्टवेयर भी अगर ले लेगा फिर भी आपका मोबाइल चालू नहीं होगा, क्योंकि उधर भी जाके आपका रैम वोल्टेज देखना पड़ता है, मेरा प्रॉपर रैम वोल्टेज आउट है कि नहीं। ठीक है, ये सब जानकारी आपका पास होना चाहिए। अभी जितने भी इधर गोल्डन कलर है, बाहर सिल्वर है, ये सब क्या है, कैपेसिटर।
और मोबाइल फील्ड में जो कैपेसिटर यूज होता है वो नॉन पोलराइज होता है, ठीक है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर का क्या होता है, कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, इसका बोर्ड में जो रहता है हम लोग का मोबाइल फील्ड में, इसका जो बोर्ड का डायग्राम है, डायग्राम में प्लस माइनस का ऑप्शन है। जो प्लस है उधर आपका वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जो माइनस है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। और वो जो वोल्टेज जाने के टाइम पे जो फिल्ट्रेशन में आपका जो भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, वो जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसको ग्राउंड के साथ वो खत्म कर दे। यही होता है कैपेसिटर का यूज, ठीक है। तो एक काम करो, आज का क्लास कौन लेगा? राहुल। आज का जो क्लास है वो राहुल लेगा। चलो राहुल, हिंदी तो क्लास करो करो करो, चलो 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 करो, आसो। नाउ स्टार्ट करो। कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, रेजिस्टर सब पढ़ो। আরে সারা জীবন থোড়ি কাজ করবে, কোনোদিন না কোনোদিন টিচিং তো করবেই। আর তোমার যে নলেজ আছে সেগুলো এখানেই বার করো। कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना, ठीक है। और हमारा मोबाइल फील्ड में कैपेसिटर ऐसे दिखता है गोल्डन कलर में। तो उसको अगर स्कीमेटिक में देखा जाए तो उसका सिंबल होगा कुछ ऐसे। स्कीमेटिक में कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। इसका कोई पोलराइजर नहीं है। अगर पोलराइजर तो दूसरे सर्किट में होता है, मोबाइल फील्ड में पोलराइजर नहीं है। पहले वाला फोन में था, जो अभी का सेट में पोलराइजर कुछ नहीं है। तो इसका प्लस माइनस कुछ फिक्स नहीं है, जैसे चाहे वो लगा सकते हो, ठीक है। ये जोर बोलो। उसका सिंबल सी, हाँ, पोलराइजर होता तो कुछ ऐसे सिंबल ऐसे करके यहाँ पे तो कैपेसिटर तो फिल्टर में होता है। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव वाला लाइन है और ये नेगेटिव वाला लाइन है, तो कैपेसिटर कैसे यूज होता है, पैरेलल यूज होता है, ऐसे यूज होता है। पैरेलल की यूज होता है कैपेसिटर हम लोगों का जो सिस्टम है, सिस्टम में पैरेलल और सीरीज। सीरीज और पैरेलल क्या अंतर है? सीरीज में क्या होता है, एक सेक्शन में दूसरा सेक्शन को जोड़ने के लिए यूज होता है। और पैरेलल यूज होता है ओनली प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? हाँ। করো না, এবার স্কেমেটিক অন করো, স্কেমেটিকে দেখাও, স্কেমেটিকে কোড দেখাও। ওখানে টি চিহ্ন যেখানে আগে 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 ওই যে ওখানে ক্লিয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার করো, স্কেমেটিক অন করো। স্কেমেটিকে ক্যাপাসিটর চিহ্ন দেখাও, সিম্বল কি হয়? तो स्कीमेटिक में इस वाले में क्लिक करिए, इस वाले कुछ भी सर, ऐसे ऐसे तो सब कुछ पता है, लेकिन वहां जाने के बाद जो कोई बता ले बहुत बड़ी बात है। এই যে এগুলো কি আছে, এগুলো সি, মানে মোবাইলে লেআউটে যখন আমি যেটাকে সি দেখতে পাবো সেটা আমার ক্যাপাসিটর আছে, তাই তো। তো ক্যাপাসিটরটাকে এখানে ডবল ক্লিক করে নাও। ডবল ক্লিক করলে আমার এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটর এলাকায় চলে আসবে। এই যে ক্যাপাসিটর আমার চলে আসলো, ঠিক আছে। বলো, বোঝাও, এটা সম্পর্কে বোঝাও। ये जो मैंने पहले दिखाया था, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है। तो इसको डिनोट किया जाता है, इसका जो नापने के लिए जो उसका कोड है वो फैराड में होता है। यहाँ पर 4.7 माइक्रो फैराड और 10 वोल्ट का कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज होगा तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा।
तो ये सेक्शन में ये कैपेसिटर पैरेलल लगा हुआ है, इधर ग्राउंड है और इधर कुछ ना कुछ वोल्टेज है। तो इस लाइन को फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर इधर लगा है। क्लियर? तो कैपेसिटर क्या है भाई, आपको देखना है तो पहले लेआउट में जो सी लिखा होता है उसको ले लो। उनके बाद स्कीमेटिक का ऑन करो, इधर जाओ पेस्ट कर दो, इसमें डायरेक्ट होता है, बार बॉर्नियो में क्या पेस्ट होता है। वो बता ये देगा मेरा कि कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट का है, 4.7 फैराड का कैपेसिटर है ना, कहो ना ना पढ़े। उसमें बता भी देगा कि किस सेक्शन का हाँ। है हमारे का। क्लियर? ये पूरा आ गया मेरा कैपेसिटर। और इसको मापने के लिए क्या कौन सा मोड यूज करेंगे मीटर पे? बर्जर मोड यूज होगा। यस सर। अगर बोर्ड में लगा है तो और बाहर निकाल के भी हम लोग चेक कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, बोर्ड में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड प्रोब को रेड का रेड प्रोब को ग्राउंड में रखना है यस सर। और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। एक साइड वैल्यू आएगा और एक साइड आपका बीप बजेगा। अगर बीप बज गया बोथ साइड तो ये फुल शॉर्टिंग में है। अगर आपका वैल्यू कम है तब ये लीकेज में है। फिर भी हमको इसको चेक करने के लिए इनको बोर्ड से बाहर करो और बोर्ड जर्मन में चेक करो, नो वैल्यू नो बीप। क्लियर? चलो राहुल एक बार रजिस्टर है, ऐसो मेन रोल रजिस्टर है এই যে সব কি আছে কালো কালো রেজিস্টার আছে, এই কালো কালো বোথ সাইড সিলভার কি আছে, এটা আমার রেজিস্টার আছে। বর্ণীয় তো দেখতে গেলে এই যে এগুলো কি আছে সব রেজিস্টার আছে। বুঝাও রেজিস্টার সম্পর্কে বুঝাও। तो मोबाइल सर्किट में रजिस्टर कुछ ऐसे दिखता है, ब्लैक कलर का, और दोनों तरफ सिल्वर रहेगा, सिल्वर कलर रहेगा। तो इसको अगर स्कीमेटिक में देखा जाए तो इसका सिंबल कुछ ऐसे होगा। राइट को ना होगा ना, चलो स्कीमेटिक में इसका सिंबल कुछ ऐसे होगा और इसको आर से डिनोट किया जाएगा। और इसका जो मापने के लिए जो इसका सिंबल है तो कुछ ऐसे होगा, ओम्स मोड में होगा। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और मल्टीमीटर में भी ये ओम्स का सिंबल मिलेगा आपको। क्लियर? उनके बाद आ जाओ आप स्कीमेटिक डायग्राम में। इसमें देखो आपका कहा है रजिस्टर, नीचे कैपेसिटर हाँ है, फिर भी देखो इधर जो आर लिखा है भाई, जो आपका इधर आर लिखा है लेआउट में, ये आपका रजिस्टर होगा। डबल क्लिक करो तो इधर आ गया, बट बॉर्नियो में जाओगे तो क्या होगा, ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना रजिस्टर है भाई, और ये 11K का रजिस्टर है। इसको क्या करना है भाई, तो इसको सिर्फ चेंज करेंगे, ये रिप्लेस होगा, ये कभी जंपर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूएबल रजिस्टर है। और ये किन के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये कौन सा सेक्शन है, सर ये है एलईडी का, वो सर क्या है भाई, कैमरा फ्लैश, कैमरा का है, कैमरा फ्लैश का लाइन है। ठीक है, एलईडी ड्राइवर। ठीक है, ये स्विचिंग का एलएक्स क्या है, स्विचिंग का, ये वोल्टेज वीपेज पावर इन है, ये स्विचिंग का कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल का सिंबल है, एल मतलब कॉइल है। ठीक है, और ये नॉर्मल डायोड है, ये जेनोड डायोड 1 जेनोड डायोड 2, ये दोनों को मिला के क्या हो गया, ये टीवीएस डायोड हो गया। क्लियर? बट ये रजिस्टर अगर आपका शॉर्टिंग में आ जाएगा
तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 100%। ठीक है, ये जो रजिस्टर है ये किन के साथ ऑपरेट हुआ है भाई? ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ ये ऑपरेट है। क्लियर? ये रजिस्टर का 8 सिंबल है, ये है रजिस्टर। रजिस्टर मापते हुए किया देखिएगा, कैसे चेक करोगे इसको? कैसे चेक करेंगे? ये आपके पास रजिस्टर, तो कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर से। ये किलो ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में इस ओम मोड में जाना पड़ेगा। ओम मोड में डायल को रखना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखो और रेड प्रोब को ग्राउंड में रखो और ब्लैक प्रोब को देख के शॉर्टिंग चेक करने के लिए वैसे चेक करना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू नापना है तो इसको उठाकर चेक कर सकते हैं। मीटर मल्टीमीटर का दोनों प्रोब रजिस्टर के दोनों साइड रखकर उसका वैल्यू चेक कर सकते हैं और बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है वो। ठीक है, तो उठाकर कभी भी कोई भी कंपोनेंट एग्जैक्ट उनका वैल्यू निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको कंपोनेंट तो उठाना पड़ेगा, कंपोनेंट को उठा के बाहर रखना पड़ेगा। बाहर उसको चेकिंग में उसका ओरिजिनल वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर आपको लगता है इसमें 11 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, आप ओम्स मोड पे रख के प्रॉक को दो साइड क्लिक रखो रजिस्टर का, उधर देखो आपका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर इनका वैल्यू आप देख लो 5 के आ रहा है, ठीक है, 11 के नहीं आ रहा है, तब इनको क्या करना है? उसको बोर्ड से निकाल के बाहर चेक करो, तब आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, पता चलेगा। दूसरी बात, रजिस्टर अगर खराब होगा तो उनका कलर का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो भी आपको आंखों देख के करना पड़ेगा। कैपेसिटर का भी सेम है, अगर कोई भी कैपेसिटर रजिस्टर आपका खराब आ जाएगा उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। क्लियर? जैसे कैपेसिटर खराब हो तो चेंज करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस। कभी भी कैपेसिटर रजिस्टर कोई भी हो, कोई भी कंपोनेंट हो, आपको रिप्लेसमेंट मस्ट भी क्या होता है? जरूरी होता है। किलो ओम्स का रजिस्टर आप कभी भी बाईपास नहीं कर पाओगे भाई, ऑलवेज उसका रिप्लेसमेंट होगा। कैपेसिटर तो बाईपास नहीं होता है। ठीक है, अगर बाईपास कोई भी करने जाओगे तो क्या शॉर्टिंग हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, बिना वैल्यू देख के उनको रिप्लेस मत करो, देख कर ही उनको रिप्लेस करो। भाई कंपनी इतना चुतिया नहीं है क्या, इतना सारे कंपोनेंट देख के रख दिया मोबाइल फील्ड में। ठीक है, उसके भी कोई रीजन है, तो कोशिश करो बाईपास नहीं करने का। क्लियर? ऑलवेज कोशिश करो उनको रिप्लेस करने का। क्लियर? फिर आ गया मेरा कॉइल में। कॉइल का जो स्कीमेटिक कोड क्या होता है? वो एल होता है और उनका जो सिंबल होता है ये होता है उसका सिंबल। कैसे? ऐसे खड़ा रहेगा, उनके बाद ये जाके, उनके बाद ये, बस ये हो गया कॉइल। ठीक है, कॉइल क्या यूज होता है मोबाइल फील्ड में? इसका काम क्या होता है? स्विचिंग करने का, एक बूस्ट का और एक बाक का। बूस्ट का क्या स्विचिंग होता है? जिधर वोल्टेज आपको लो है उनको हाई करना है, तब इनको क्या करना है? बूस्ट करना है। और जिनका हाई वोल्टेज है उनको लो करना है, तब उनमें क्या होता है? बाक यूज होता है। कॉइल बाक या बूस्ट बोल के कोई कॉइल नहीं होता है, जिधर उनका वर्किंग होता है, वर्किंग का नाम उनको बोला जाता है। कॉइल यूज क्यों होता है? कॉइल यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए, वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, एसी टू डीसी। जो वोल्टेज कन्वर्ट होता है वो मेन काम होता है कॉइल का। जो स्विचिंग का काम क्या होता है? मेन कॉइल का। क्लियर? राहुल बोलो कॉइल संपर्क बोलो। বলো বুস্ট কয়েল বাক কয়েল কোথায় কোথায় ইউজ হয় আগে সেটা বলো। বুস্ট কয়েল কোথায় ইউজ হয়? লাইট সেকশন, গ্রাফিক সেকশন। বাক কয়েল কোথায় ইউজ হয়? পাওয়ার আইসি सीपीयू, सीपीयू लाइन, एमएमसी लाइन। एमएमसी लाइन और सीपीयू लाइन में क्या होता है? बाक कॉइल यूज होता है। बढ़ जाए वोल्टेज कम हो जाए। यस, और लाइट सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में क्या होता है? बूस्ट होता है भाई। क्लियर?
कॉइल दिखने में कैसा रहता है वो दिखाओ और उसका चेकिंग मेथड बोलो। कॉइल दिखने के लिए ऐसा कुछ दिखेगा। सर एक ये भी होता है, एक नोच पॉइंटर जैसे। हाँ कुछ ऐसा ऐसा दिख सकता है। और दूसरा दिखाओ। नोच पॉइंट इसमें नहीं है। कुछ ऐसा भी दिख सकता है कॉइल। 3-4 प्रकार का दिखता है। ठीक एक है। मिनट, वो तो बनिए द्वारा ভালোভাবে দেওয়া আছে। এই যে দুটো কয়েল আছে অডিও আইসি পাশে। ये भी कॉइल है इसी के पास। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सही से पहचानना पड़ता है भाई। अगर सही पहचान आपका रह जाएगा तो कोई भी काम आप इजीली कर लोगे। कोई भी काम आप क्या इजीली कर लोगे। ये है कॉइल मेरा, ये भी कॉइल है। ठीक है, देखने में कैसे है देखो, ये भी आपका कॉइल है। ये क्या कर रहे हैं एक एक सेक्शन में इनका क्या चल रहा है, इसका स्विचिंग का काम चल रहा है भाई। क्लियर। ये भी क्या है, ये भी कॉइल है। ये कौन सा सेक्शन है ये, ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन। इसका जो स्कीमेटिक कोड क्या रहेगा, एल एल बी बी। ऑडियो सेक्शन का ऑडियो सेक्शन में इसका बी रहेगा। बी रहेगा, बाकी सब एल रहेगा। और फिर भी उनके और भी सेक्शन में आप चला जाओगे तो आपका नेटवर्क सेक्शन में भी बहुत सारे कॉइल मिलेगा। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे कॉइल है। बट वो अगर आपका स्कीमेटिक में हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाओगे थोड़ी आपको पता चलेगा। हाँ, मान लो ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपको एक भी कॉइल शो किया, इधर देखो ना कॉइल है इधर। तो अभी जब ये कॉइल के बारे में आपका जानकारी लेना है तो आपको क्या कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा। क्लियर, कहाँ जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक में, स्कीमेटिक डायग्राम में जाना पड़ेगा। हम लेआउट में आ गया। लेआउट में आने के बाद आपका क्या आना है, नेटवर्क सेक्शन आना है। फिर वहां से कॉपी करके इस पर टेस्ट कर। लेआउट में आ गया, चलो ओपन ही भाई नहीं हुआ है। देख रहे हैं आपका कॉइल। हाँ, इसमें कैसे कॉइल लिखा है, इसमें क्या लिखा है, आर लिखा है। सही लिखा है ये लोग कॉइल का, गलत है ना, ये गलत है या सही है, गलत है। क्लियर। तो आपको इस सिंबल से क्या है पता करना है भाई। जितने भी सिंबल है आपको सिंबल से पता करना है। ये क्या है, कैपेसिटर। इसमें क्या लिखा है, रजिस्टर।
ये रहेगा आपका कॉइल। लेआउट में आ जाओ, मारो क्लिक। ये किसका काम कर रहा है? ये 340 है। 340p का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको क्या करना है भाई, जब भी दिखना है ये आपका सिंबल का हिसाब से काम करना है भाई। अगर आप सिंबल का हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। आ गया मेरा कॉइल। ये क्या है? ये कॉइल है, L2610 का कॉइल है। इसका कहाँ जाना है? हार्डवेयर सॉल्यूशन में आ जाओ, ये कॉइल को फाइंड कर लो। फिर आ गया हार्डवेयर सॉल्यूशन में। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आके इनको फाइंड करना है, ये कॉइल मेरा किधर है। अगर ये कॉइल भी आपका खराब रहेगा या शॉर्टिंग रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियो ऑफ आ जाएगा। तब भी आपका नेटवर्क क्या होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? अगर ये कॉइल में भी दिक्कत होगा तो आपका क्या होगा, नेटवर्क सिलेक्टेड नहीं होगा। ये मेरा 3G 4G IC है, कोने में इनका कॉइल है। क्लियर? ये मेरा कॉइल, बट इधर क्या किया, बाईपास कर दिया ना, ये लोग बाईपास कर दिया। तो लेकिन ये अगर खराब रहेगा थोड़ी आएगा, अगर शॉर्टिंग रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से आपका ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड से कोई भी कॉम्प्रोमेट अगर ऑपरेट होगा तो उसमें क्या दिखाएगा, आपका शॉर्ट दिखाएगा। अगर ये कॉइल अगर आपका खराब रहेगा फिर भी आपका रेडियो ऑफ आएगा, नेटवर्क आपका नहीं आएगा, आप कितने भी आईसी चेंज कर लो। क्लियर? कॉइल क्या मापते হবে রাহুল? कॉइल तो हमारा कॉइल मापाর জন্য অন্য एलसीआर मीटर होता है कॉइल मापने के लिए। किसे मापते हो भाई? इस मीटर में अगर हमारा जो मीटर होता है, इस मीटर में अगर चेक किया जाता है, हम लोगों का जो जितने मीटर है उसमें चेक करेंगे, क्योंकि उसका हैंडी का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कॉइल का एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए आपका हैंडी में होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कॉइल जो होता है वो तो ठीक है कि नहीं, एक वायर होता है, ठीक है। ऐसे एक क्या होता है, वायर होता है, उसको बार-बार लपेट एक वायर है। ये वायर को क्या क्या कंपनी ने इधर एक बॉक्स में डाल दिया, ऐसे करके घुमा घुमा के फिर इधर डाल दिया। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, इनका जो कॉइल है ये सही है कि नहीं, मतलब कनेक्टिविटी है कि नहीं, ये काट तो नहीं गया। तो बजर मोड में हम लोग बोथ साइड रख के देखते हैं बीप बज रहे कि नहीं बज रहे। अगर हाई बीप है तो मान लेंगे ये सही है मेरा कॉइल, ठीक है। बट क्या होता है, कॉइल का जितने दिन जाना पड़ता है उनका वर्किंग वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इनको रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट करने के लिए आपका सेम बोर्ड से या तो सेम इनका जो वैल्यू है वो देख के कॉइल उठा के रिप्लेस कर दो। क्लियर? अगर कॉलकम है तो कॉलकम से करेंगे, मीडियाटेक हाँ, जो सेम फ्रीक्वेंसी है उसमें इसको कर दो। सेम बोर्ड लेके सेम हाँ, जगह से उठा के। अभी इनके बाद क्या आएगा, डायोड। ये रहेगा मेरा डायोड। मोबाइल फील्ड में डायोड का क्या होता है, दो ऑपरेशन रहता है, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड। रिवर्स में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, वोल्टेज को पास करने नहीं देता है। और फॉरवर्ड ऑपरेशन में क्या होता है, उनमें वोल्टेज को पास कर वोल्टेज आगे पास कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनका दो लाइन होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। क्लियर? एक एनोड दूसरा कैथोड। इनका जो सिंबल होता है स्कीमेटिक में, क्या सिंबल होता है, ना ये कॉम्बिनेशन कर दो।
क्लियर? ये आ गया मेरा डायोड। ये मेरा क्या है? डायोड है। ये डायोड का सिंबल है। सिंबल है क्या था এখানে শুনতে করে? डायोड का सिंबल सॉरी, ये है नॉर्मल डायोड का सिंबल। ये है एक मेरा नॉर्मल डायोड है, इनका ये सिंबल है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल डायोड का आपका सिंबल है। ये जो वायर है, ये जो क्या हम लोग वाल बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, ये वाल बोलते हैं। जब वोल्टेज हम लोग इधर से फॉरवर्ड करेंगे तो वोल्टेज को क्या होगा? आगे पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। लेकिन वो ठीक रिवर्स है। को वापस नहीं आएगा। ये जो वर्किंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड वर्क। इधर आपका एनोड लाइन है और इधर आपका कैथोड लाइन है। बट जब वोल्टेज हम लोग उल्टा दे देंगे, पॉजिटिव को कैथोड लाइन पे देंगे, नेगेटिव को एनोड लाइन पे देंगे, तब क्या होगा? ये रोक देगा। ये वोल्टेज को रोक देगा। ये होता है मेरा रिवर्स वर्क। ठीक है, जैसे इधर जो डायोड का यूज हुआ है चार्जिंग सेक्शन में, ये कौन सा यूज हुआ है? ये रिवर्स में ये रिवर्स वर्क है। ये वोल्टेज को क्या है? पास नहीं करेगा। ये इधर ही क्या होगा? स्टोर हो जाएगा और ये वोल्टेज जो है इधर आएगा, बट इधर पास नहीं करेगा। ग्राउंड के साथ पास नहीं। हाँ, ठीक है, क्लियर? अभी इन जो डायोड है इनको ही थोड़ा चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिक्स डायोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तब ये क्या हो जाएगा? सिंबल ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जेड क्या होता है? ये उल्टा जेड, उल्टा जेड, जेनर डायोड। ठीक है, इसका वोल्टेज फिक्स होता है। हाँ बोलो जेनर बोलो। এদিকে আছে, এখানে লেখো, এখানে লেখো, এখানে লেখো। जेनर डायोड হবে এখানে, এখানে जेनर डायोड হবে, কোনো অসুবিধা না। को जेनर डायोड का सिंबल कुछ ये उल्टा जेड रहता है। ये होता है जेनर डायोड का सिंबल। हाँ, तो इसका कुछ पार्टिकुलर वोल्टेज होता है। ये हर एक वोल्टेज का होता है। अगर उस वैल्यू का लगाए तो वो उस ये जिस वैल्यू का वोल्टेज है, कैपेसिटी है, तो उस वोल्टेज को ही पास करेगा। এতদিন আগে उससे ज्यादा वोल्टेज होगा तो कभी दिन लाइन को देखी। पास नहीं करेगा, तो खुद शॉर्ट हो जाएगा। है ना? उससे ज्यादा होगा तो তাহলে तुरंत রোজ short আসে होगा। মানে বল করে এখানে দেবো না আজকে আসবে বলে না হলে খারাপ वो स्लिप मार दियो, Redmi 5 होता है, Note 5। নোট নাই কি তাহলে ये फिक्स होता है। বুড়া লাগে देखता है বলছে इन्हें क्या देखता है और कलर देखना होता है। देखने में ब्लैक স্যামসাংয়ের कलर সেটটা দেখিস তো স্যামসাংয়ের সেটটা नेटवर्क प्रॉब्लम तो जेनर डायोड में क्या होता है भाई? ये फिक्स डायोड है, जो फिक्स वोल्टेज है उसको ही पास करने देगा। ठीक है, बाकी वोल्टेज को क्या करेगा? स्टोर कर लेंगे। स्टोर कर लेगा या तो रिवर्स करेगा, मतलब बैक कर देगा। बट जो वोल्टेज जाना है वही जाएगा। तो इसका चेकिंग मेथड क्या है? इसको डायोड मोड पे रख के, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के इसको चेक कर सकते हैं। डायोड मोड में मल्टीमीटर को रखो, एनोड लाइन पे पॉजिटिव और कैथोड लाइन पे नेगेटिव। कैथोड लाइन पे नेगेटिव। क्लियर? Yes, sir. और दो जेनर डायोड जब एक साथ होता है तब क्या कौन सा डायोड बनता है? वो तो टीवीएस डायोड। टीवी रहता है। वो क्या बन जाता है? टीपीएस डायोड बन जाता है। ठीक है, क्लियर? राहुल মোটামুটি স্কিমেটিকে দেখে টিভিএস ডায়োড, নরমাল ডায়োড এর কি আছে? এটা रिवर्स से वर्क আছে, वर्क रिवर्स से আছে। ये वर्क क्या है? रिवर्स में है। क्लियर? कैसे जाओगे? उनके बाद आपको जो भी देखना है भाई, सब आपको जो चेकिंग होगा बोर्ड में होगा। रजिस्टर का सिंबल क्या है? आर है। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल सी और ये है, कॉइल का सिंबल
एल देखने में ये है। डायरेक्ट का सिंबल ये है भाई। ये आपको देखकर क्या करना है, स्कीमेटिक में देखना है और बोर्ड में चेकिंग करना है। जब तक इसका सही से नॉलेज आपका नहीं होगा तब तक आप वर्क नहीं कर पाओगे कोई भी सेक्शन में। और ये जितने भी क्लास चल रहा है यूट्यूब में चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब में क्या है, इतना और भी डिटेल जानना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बट आप लोगों को तो पता ही है, इनके ये नॉलेज खत्म हो जाएगा आपका स्कीमेटिक फुल देखने को, कौन सा क्या लाइन है, कौन सा क्या लाइन है, फ्लैश आउट क्या है, बूट कैप क्या है, वोल्टेज स्विचिंग क्या है, चार्जिंग आउट क्या है, ये एनेबल सिग्नल क्या है, आईडी थर्मल, ये सब स्कीमेटिक में आपको पता चलेगा। विदाउट बोर्ड ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है बोला अमित, सही है। उनको चलो प्रैक्टिस में आ जाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। ये तो कितना सारे है सब सर एक डायरेक्ट बोलता है এই যে ডায়োড আছে, এই যে আমার কয়েল আছে, এটা হচ্ছে আইসি আছে 6 লেগ লাইট আইসি আছে, ক্লিয়ার, ওকে। এই ছোট ছোট কুচো কুচো গুলো কি আছে, এই দুটো রেজিস্টার আছে, এটা রেজিস্টার আছে, এটা कैपेसिटर আছে, এটা कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये सब क्या है, कैपेसिटर है, और ये सब रजिस्टर है। और भी अगर आप बीट मैप ओपन करोगे, ठीक है, मान लो आप बीट मैप ओपन किया किसी का सेक्शन में, कोई भी सेक्शन में आप किसी का भी बीट मैप ओपन कर लो, इसमें कौन सी मॉडल क्या लगा था सर आईसी, देख लेंगे। ये मेरा बीट मैप है। बीट मैप में और भी आसान हो जाएगा आपका रजिस्टर और कैपेसिटर कॉइल ढूंढने में। अगर इनका ओरिजिनल बीट मैप होगा तो आपके लिए बहुत आसान है ये ढूंढने का, ठीक है। आपका ओरिजिनल बीट मैप होगा तो इनका और भी आसान होगा ढूंढने में। देखो ये कंपनी का बना हुआ बीट मैप है, इसीलिए इनमें क्या है, कोई भी वो लोग सिंबल नहीं दिया, क्लियर। ये कंपनी का बना हुआ बीट मैप है, इसलिए इसमें सिंबल नहीं है। मतलब ये जो स्कीमेटिक कंपनी है उनका है भाई, ये कंपनी नहीं है। अगर दूसरा कंपनी होगा तो उनका क्या होगा, फुल नाम और सिंबल के साथ रहेगा, क्लियर, नाम और सिंबल के साथ रहेगा। चलो आ जाते हैं बीट मैप में। এটা তারাপীঠের কথা। ना कौन देखो बीट मैप में ढूंढने में कितना आसान होगा भाई। जितने भी सी है एक साइड ग्राउंड है, एक साइड आपका लाइन है, क्लिक मारो आ गया लाइन। अगर आपका जब शॉर्टिंग रहेगा तो ये क्या होगा, ग्राउंड, अगर ये भी ग्राउंड हो जाएगा तब तो क्या होगा, वर्किंग रहेगा, शॉर्टिंग रहेगा, वर्क नहीं रहेगा। ये आपका कॉइल है, एल मतलब क्या होता है, कॉइल है। इनका देखो ये स्विचिंग का काम कर रहा है, इधर कर दो तो आईसी का अंदर है, इधर कर दो तो बाहर है। बट और एक लाइन होता है, ये क्या लाइन होता है, ये फीडबैक का लाइन होता है। ये जो लाइन है ये क्या होता है, ये छोटा वाला लाइन ये फीडबैक का लाइन है, क्लियर। उनके बाद आ जाओ डी मतलब डायोड है। अगर ये क्या है, पॉजिटिव पिन और ये नेगेटिव पिन उनका। अगर ये जो वोल्टेज है इधर से दे देते तो क्या हो, वोल्टेज आगे पास नहीं होता है, ठीक है। अगर करंट इस साइड से होगा तो वोल्टेज आगे पास नहीं होगा, क्लियर। और तो रजिस्टर का सिंबल, रजिस्टर का काम क्या है, एक सेक्शन के दूसरा सेक्शन जाने का,
ये एक सेक्शन ये चला गया दूसरा सेक्शन में, फिर इधर। क्लियर? रजिस्टर का काम क्या होता है, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन में, फिर आ जाओ आपका नेटवर्क सेक्शन में। देखो पानी ठीक है? है ना? है? हाँ, देखो देखो ये क्या है, एल का मतलब इधर भी कोई क्या है, ये एल कॉइल है, नेटवर्क सेक्शन में कॉइल है आपका भाई, यस सर। मिला है नेटवर्क सेक्शन में कॉइल। भाई जितना आप स्कीमेटिक देखते जाओगे ना उतना ही आपके लिए काम इजी होता जाएगा। सर जितना आप देखोगे उतना आपके लिए क्या होगा, इजी। ये जो कॉइल देखो, ये नेटवर्क सेक्शन में कॉइल में थोड़ा देर बाद स्कीमेटिक में दिखाया था, ये जो एल है कॉइल, ये किसके साथ ऑपरेट है, ये ग्राउंड के साथ। ये जो कॉइल है ये किसके साथ ऑपरेशन है, ग्राउंड के साथ। ये क्या है भाई, रजिस्टर है, किसमें है, ग्राउंड के साथ। तो नेटवर्क सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कॉइल है ये क्या है, बोथ साइड वैल्यू है, और ये कॉइल ग्राउंड है। अगर ये थोड़ा गलती से मैं आप दूसरे में चला जाओगे, आप चेक कर रहे हो भाई ये ग्राउंड शो कर रहा है, ये खराब नहीं है रे भाई, ये खराब नहीं है। बहुत साल पहले, 1 साल 2 साल पहले इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वो यूट्यूब में इसको ग्राउंड शो कर दिया, शॉर्ट बोल दिया, तो हम लोग थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया तो वो भी डिलीट कर दिया था कमेंट। तो आपका बीट मैप रहेगा, काम करना बहुत इजी है। इधर भी देख के काम करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद बीट मैप में जितने भी आईसी डायग्राम है, कौन सा पिन किधर गया, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी तो जितने भी नया मोबाइल आ रहे हैं ना, सबका आपका सीपीयू डैमेज होता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या करता है, उनको काट कर देता है, बट मोबाइल चालू नहीं होगा क्योंकि वो भी मेन लाइन होता है। आपको सीपीयू रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर आपके पास फाइल है तो तब जाके वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर? यार चेंज कर दोगे तो स्वाइप हो गया, कोई बात नहीं, बट हमेशा चेक करो सीपीयू लाइन सॉर्टिंग का। आपके पास काम आया है, सबसे पहले सीपीयू लाइन सॉर्टिंग चेक करो भाई, वो लाइन सॉर्टिंग है कि नहीं। अगर सीपीयू लाइन सॉर्टिंग है तो उन काम पे ऐसे कर दो, अगर आपके पास सीपीयू नहीं है तो काल के दिया बेकार में स्क्रैच करो, डिस्कनेक्ट करो, कोई ना कोई सेक्शन वर्क बंद ही होगा। अगर मोबाइल आपका चालू भी होगा तो कोई ना कोई सेक्शन आपका बंद हो जाएगा, तो बेकार आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? भाई मैंने बहुत कोशिश किया यूट्यूब में थोड़ा बहुत अपडेट देने के लिए, और मेरा बहुत सारे वीडियो है जो इसमें अपडेटेड है, ठीक है। जितना हो सके यूट्यूब में देने के लिए मैंने दे दिया। और भी जानकारी आप लोगों का चाहिए तो ज्वाइन करो मेरा इंस्टीट्यूट, आपको 100% काम करने का मौका मिलेगा लाइफ में। कॉम्प्लीमेंट नॉलेज बोलो, स्कीमेटिक डायग्राम बोलो, हैंड स्किल बोलो, एमएमसी, रिपियार्ड, चेंज, सॉफ्टवेयर A to Z आपको मिल जाएगा इधर। 10-15 दिन में कोई भी आपको टेक्नीशियन नहीं बनता है भाई, कम से कम 30 डेज का एक क्लास ज्वाइन करो, उनके बाद फिर आप अपना काम करो। काम करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फिर रिज्वाइन करो, इसके लिए अलग से आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट का जितने भी अपडेट देखने के लिए आपको फेसबुक पेज में जाओ, टीम एमआरटी ब्लॉगर बोल के एक पेज है, उसमें देखो हम लोग का स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तब पता चलेगा। यूट्यूब में लेक्चर मारने से कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बन जाता है, काम सिखाना पड़ेगा भाई। काम सिखाओ तब जाके आपका अपडेट मरेगा। किसमें मरेगा? उनका ग्रुप में मरेगा, उनका प्रोफाइल में मरेगा। बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनका वीडियो बहुत बन जाता है, ठीक है, बट उनका एक भी फेसबुक पेज में उनका अपडेट नहीं है स्टूडेंट लोगों का। इंडिया का बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनका सिर्फ ऐड देखो, ऐड फेसबुक ओपन करो तो उन लोगों का ऐड है। जो बंद सीखने आता है उनका ऊपर वीडियो बना देता है, और बाद में जाके वो लोग काम नहीं करता है, नहीं होता उनसे काम, क्योंकि होता है ऐड में टाइम चला गया उनका, कहाँ से सीखेगा। बट वो लोग सोच के यही ऐड देते हैं क्योंकि अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा, बाद में जाके वो सपोर्ट भी जीरो हो जाता है, बाद में भी सपोर्ट भी आपका जीरो हो जाता है। आप वेस्ट बंगाल में हो,
वेस्ट बंगाल में आप जिधर भी रह जाओगे, इधर हम लोगों का आने में कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स लगता है। पूरा वेस्ट बंगाल में जिस कोने से भी आप हो 8 आवर्स में आ जाओगे आप। आ जाओ भाई, काम सीखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आ जाओ, आके आपका जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उनको सॉर्ट आउट कर लो, तब जाके टेक्नीशियन बनोगे आप, उनसे पहले नहीं। क्योंकि 30 डेज 15 दिन में कोई भी टेक्नीशियन नहीं बनता है। हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किया 3 साल के बाद, मतलब 4 साल हुआ तो स्कूल जाना स्टार्ट किया। उनके बाद 10 क्लास पास किया, हाई सेकेंडरी पास किया, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने एमए कंप्लीट कर लिया, दूसरे बहुत सारे कोर्स कर लिया, तब भी जाके उन लोगों का भी काम नहीं हो रहा है। जो कोर्स किया उनका ऊपर भी उनका कोई ध्यान भी नहीं है अभी भी। तो फिर आप सोच रहे हो 10 दिन 15 दिन में मिस्त्री बन जाओगे? पॉसिबल है ये? कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बीटेक करने में कितना टाइम लगता है? 4 साल। आप सोचो 4 साल बनने के काम करने के बाद वो लोग इंजीनियर बनते हैं, फिर भी सही से ना काम नहीं कर पाता है। तो आप सोच रहे हो 30 डेज में आप मोबाइल बना लोगे, 15 दिन में आप मिस्त्री हो जाओगे? हाँ, हलवा थोड़ी है जो आग जलाया, माल दे दिया, पका लिया, अच्छा हो गया। भाई ये नॉलेज का चीज है। जितने आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा। वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आपको क्या करना है? फिर आप एक टेक्नीशियन बनोगे। बट एंड्रॉइड ऐसी चीज है, आप लोग जो काम कर रहे हो एंड्रॉइड में काम कर रहे हो। एंड्रॉइड ऐसी चीज है, दिन के दिन अपडेट होता है। इंडिया में अभी कितना मोबाइल है रियलमी का? 550 है रियलमी का मॉडल, उनसे भी ज्यादा। तो आप सोचो कि रियलमी का इतना है, एमआई का है, वीवो का है, ओप्पो का है, टेक्नो का है, आईटेल का है, इन्फिनिक्स का है, सैमसंग का है, कितना सारा मॉडल हो चुका है। कहाँ मिलेगा आपको इतना सारा सॉल्यूशन? कैसे आप फाइंड करोगे? क्योंकि सबका प्रोसीड्यूर अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत देखा, बाकी सबका ही अलग अलग प्रोसीड्यूर है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, हैंड स्किल सही नहीं है, तो कैसे करोगे? ई पॉपअप सीपीयू है किसका? सैमसंग का है, व्हाइट पेस्ट है, थोड़ा हिट का इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म। ब्लैक पेस्ट है, वीवो का हार्ड ब्लैक पेस्ट है, हिट का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा? सो गया वो। रेडमी का अभी डुअल डेकर है, नॉर्मल है, सब रेडो सीपीयू है, उनका भी ब्लैक पेस्टेड है। थोड़ा हिट ज्यादा हो जाएगा, उसका सीपीयू भी क्या होगा? मर जाएगा। आपका सही से क्लीन नहीं आता है, आप क्या करोगे? थोड़ा घिस दिया तो ऐसी खत्म। आप ऐसे काम कर दिया, दूसरे को पास जाएगा तो वो भी करने का लायक नहीं रहा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर में नॉलेज सही करो, फिर धीरे धीरे सेक्शन को सही करो, हैंड स्किल सही करो, उनके बाद सॉफ्टवेयर करो, एमएमसी रीप्रोग्रामिंग करो। अभी भी तो ग्लास कटिंग बाकी है, एलसीडी पीडीए चेंज करना बाकी है, चार्जिंग पिन बाकी है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा आपको। देखो एक शॉप है आपका, कितना काम करोगे आप? कस्टमर तो पीछे खड़ा है, एक के बाद एक खड़ा है। अगर आपके पास सब वर्किंग नॉलेज नहीं है, आपने क्या कर दिया? आप स्टाफ रख लिया 4। एक स्टाफ का क्या काम है? कॉम्बो करना है, एक को सॉफ्टवेयर करना है, एक को एमएमसी प्रोग्रामिंग करना है, एक को पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ये सब करना है, एक को सीपीयू एमएमसी करना है। आप सोचो जो टास्क काम का काम है उनको छोड़ दो, बाकी सबका कम्युनिकेशन कैसे है? अगर आपके पास नॉलेज सही नहीं है, आप फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करोगे? क्योंकि वो तो सारा पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, नेटवर्क कर लेता है, और ये क्या करता है? ये सीपीयू का वर्क करता है, और ये सॉफ्टवेयर और एमएमसी का प्रोग्रामिंग करता है। आपका प्रॉब्लम हो गया हार्डवेयर का, वो तो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, एमएमसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपका एमएमसी रीप्रोग्रामिंग करने के बाद आपका नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, वो क्यूसीएन के ऊपर क्यूसीएन डाल रहे हैं, प्रॉब्लम है हार्डवेयर का। या तो आपका उन पे सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है हार्डवेयर का। तो आपको काम करने के लिए ऑल इन कॉम्बो होना पड़ेगा। इसके लिए अपने ऊपर मेहनत करो और टाइम दो। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो क्या होगा? आप मिस्त्री नहीं हो पाओगे भाई, मिस्त्री आप नहीं हो पाओगे। क्लियर? ये जो दिख रहा है ना, ये भी एक डायोड है, और ये कोने में ग्लास टाइप का डायोड है ये। एक कोना डायोड ऐसे को देखा हूं, ये वाला डायोड है, एगो पोलराइजर है ये, इसका पोलराइज है। ये देखो, ये है कैथोड का लाइन है, ये वाला कैथोड का है। यहाँ जहाँ मार्क रहेगा ये कैथोड का रहेगा। नीचे डुअल रजिस्टर देखो, डुअल रजिस्टर, ये वाला जो होता है जो डुअल रजिस्टर होता है,
इसका पैकेज एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का पोलराइज अलग अलग है, लेकिन ये पैकेज होता है। ঠিক আছে इसको पैकेज रजिस्टर बोलता है। ক্যাপাসিটারগুলোকে দেখো একবার, যে এগুলো ক্যাপাসিটার আছে বোর্ডে, কোনগুলো ক্যাপাসিটার, কোনটা রেজিস্টার, কোনটা কয়েল, এই সব কালোগুলো রেজিস্টার আছে। আর আর যে সাদাও কিছু ধরনের সাদাও ক্যাপাসিটার হয়, ঠিক আছে, শুধু গোল্ডগুলোই না, সাদাগুলো ক্যাপাসিটার হয়। এটা মিটারকে তুমি ওই বাজার মোডে রেখে ওইভাবে চেক করতে পারো। এগুলো সব ক্যাপাসিটার আছে, সব ক্যাপাসিটার, এগুলো এটা রেজিস্ট্যান্স আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, পাশে বড়টা ক্যাপ আছে, এটা ক্যাপ আছে। ঠিক আছে। এগুলো ওই বেশি ভোল্টেজ যে লাইনে, ওই লাইনে এগুলো use হয়। আর এগুলো সব রিপ্লেস করতেই হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেগুলো বড় ক্যাপাসিটার আছে তোমার রিপ্লেস মাস্ট। ये वाला है